آبادی کی آزادی کے لیے یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں صدر مملکت کی قیادت میں ریلی میں وزراء اور اراکین پارلیمنٹ کی شرکت۔ اقوام متحدہ کے نمائندے کو یادداشت پیش کی جائے گی۔ 1 منٹ کی خاموشی، وزیر اعظم آفس سے سائرن بجائے گئے۔ صدر کا کہنا ہے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ظلم کے لیے اسرائیل سے ٹیکنالوجی لی، ڈیموگرافی تبدیل کرنے کا فارمولا بھی یہودیوں سے لیا۔ اعظم عمران خان کا ٹویٹ، لکھا کشمیریوں کا سفیر بنا رہوں گا، ملک کے نئے نقشے میں کشمیریوں کی امنگوں کا خیال رکھا، اقوام متحدہ کی قراردادوں سے متعلق عزم پر قائم ہے۔ عمران خان آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب اور مظفر آباد میں ریلی کی قیادت کریں گے۔ بھارت میں ہمت ہے تو کشمیر میں ریفرنڈم کرائے، ہمت نہیں تو فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود کی للکار، کہا وعدہ ہے کشمیریوں کی وکالت کرتے رہیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کہتے ہیں بھارت تحریک آزادی کشمیر دبانے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی قیادت میں ریلی، شرکاء اقوام متحدہ مبصر مشن پہنچ گئے۔ UN سیکریٹری جنرل کے نام یادداشت پیش کر دی گئی۔ ریلی میں وزراء اور ارکان اسمبلی نے بھی شرکت کی۔ لاہور میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کی قیادت میں یوم استحصال ریلی۔ کراچی میں سی ویو پر مراد علی شاہ کی قیادت میں مرکزی ریلی نکالی گئی۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ محمود خان کی کمان میں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ کوئٹہ میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی۔ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان، گورنر پنجاب کا ریلی سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا بھارت کا رویہ امن کے لیے خطرہ ہے۔ پنجاب کے ہر ڈویژن میں ایک سڑک سری نگر سے منسوب کرنے کا اعلان کر دیا۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں بھارت کشمیریوں کا تشخص چھین رہا ہے، اسے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ عالمی برادری کو کشمیر میں مظالم کا نوٹس لینا ہوگا، بھارت نے وادی کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی گفتگو۔ اسلام آباد میں یوم استحصال پر ریلی، کشمیر کی آزادی کے نعرے، نئے پاکستانی نقشے کی تقریب رونمائی بھی ہوگی۔ کراچی میں یوم استحصال پر تحریک انصاف کا ٹرین ریلی کا اہتمام۔ ٹرین کینٹ اسٹیشن سے سکھر روانہ ہو گئی۔ گورنر عمران اسماعیل نے رخصت کیا، کہا بھارت نے کشمیریوں کے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں، ان کا ہر ظلم دنیا کو دکھائیں گے۔ یوم استحصال پر سینٹ اجلاس، صدر مملکت خطاب کریں گے۔ 7 بجے پنجاب اسمبلی کا بھی اجلاس ہوگا۔ کشمیر قرارداد منظور کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری عمارتوں اور اہم شاہراہوں پر کشمیری پرچم لہرا دیے گئے۔ باب خیبر کو بھی سجا دیا گیا۔ مظفر آباد میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن کے سامنے دھرنا، خواتین اور بچوں کی بھی شرکت۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کی جنونیت سے دنیا کو خطرہ ہے، بھارتی فوج کو انسانی حقوق کی پامالی سے روکا جائے۔ تو پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو تبدیلیاں وہ جنیوا کنونشن کے خلاف ورزی میں اور اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کے خلاف ورزی میں لائے ہیں ان کو واپس لیا جائے۔ تیسری بات یہ اقوام متحدہ اپنے وعدوں پر پورا اترے۔ چوتھی بات یہ اقوام دنیا سے میری اپیل یہ ہے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ OIC سے میری یہ اپیل ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو کشمیریوں کا ساتھ دیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر ساری قوم اکٹھی ہے، آزادی تک مقبوضہ کشمیر کے شرکاء کے ساتھ ہیں۔ کشمیری عوام فاشسٹ فوجی محاصرے میں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ پر بھارتی مظالم کی شدید مذمت کر دی، لکھا کشمیریوں کا سفیر بنا رہوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے نئے نقشے میں کشمیریوں کی امنگوں کا خیال رکھا گیا، اقوام متحدہ کی قراردادوں سے متعلق عزم پر قائم ہے۔ عمران خان آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب اور مظفر آباد میں ریلی کی قیادت بھی کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کشمیری عوام فاشسٹ فوجی محاصرے میں ہیں۔ عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کا سفیر، بھارت میں ہمت ہے تو کشمیر میں ریفرنڈم کرا لے، ہمت نہیں تو فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود کی للکار، کہا وعدہ ہے کشمیریوں کی وکالت کرتے رہیں گے، کشمیری تنہا نہیں، ہر پاکستانی شانہ بشانہ کھڑا ہے۔
अगर तुम्हें एतमाद है अपने किए पर तो मैं बहसीत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आज 1 साल की आपकी पॉलिसी का नफाज हो गया, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आइए मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीरियों से मुखातिब हो जाएं और देख लें कि आपको किस किस्म का इस्तकबाल मिलता है। कश्मीरी रेफरेंडम जब होगा, अवाम का रेफरेंडम आज ही हो जाएगा। मेरा चैलेंज है, कबूल करो, अगर हिम्मत नहीं है तो नज़रसानी करो। आज़ाद कश्मीर में भी यौम इस्तेहसाल पर रैलियां निकाली गईं। मरकजी रैली की क़यादत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने की। रैली में पार्लिमानी जमातों के लीडर्स, मेंबर असेंबली और वुज़रा ने शिरकत की। रैली अक़वाम मुत्तहिदा के मुवस्सिर दफ्तर पहुंची, जहां सेक्रेटरी जनरल के नाम याददाश्त भी पेश की गई है। मज़ीद बताएंगे इम्तियाज़ अवान। इस्तेहसाल के मौका पर आज आज़ाद कश्मीर दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में सुबह से ही जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरों और धरनों का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर दफ्तर के बाहर मुनक़सम कश्मीरी ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन, बच्चों, नौजवानों और बुज़ुर्गों ने एहतजाजी धरना दिया, जिसका पासबान हुर्रियत ने एहतमाम किया था और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो अपना वादा पूरा करे और कश्मीरियों को आज़ादी और हक़ खुदरादियत दिलाने के सिलसिला में अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान की क़यादत में पार्लिमानी पार्टी जो सरबराहान है, उनकी रैली जो है यहाँ से जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर दफ्तर तक निकाली गई और उसमें वज़रा और मेंबरान असम्बली भी शामिल थे। और इस मौका पर जो है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने नक्शे से मुताल्लिक़ सवाल करते हुए कहा कि कश्मीरियों ने ही अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करना है कि उन्हें यह हक़ दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। और आज जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब के लिए कुछ देर बाद यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने वाले हैं और आज इमरान खान एक वाज़ेह बयान देंगे और वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान करेंगे, जिससे कश्मीरियों की आज़ादी और हक़ खुदरादियत के असूल में मदद मिल सकती है। जी। भिंबर आज़ाद कश्मीर में भी यौम इस्तेहसाल पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली रवां दवां है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे खुर्रम अफजाल से। खुर्रम अफजाल, बताइएगा क्या मनाज़िर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से रियासत जम्मू और कश्मीर पर गासिबाना कब्ज़े के 1 साल मुकम्मल होने और उसकी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को जाबराना तौर पर जो उसने जी अपने आर्टिकल में 370-36A में जो उसकी शहरियत है उसका कानून तब्दील करने के ख़िलाफ़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर बर्बियत और बिला इश्तियाल फायरिंग के ख़िलाफ़ आज अक़वाम आलम की तरह पूरी दुनिया की तरह भिंबर में भी एहतजाजी रैली यौम सियार यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाई जा रही है। आज की बड़ी रैली जो है वो इस वक्त निकल चुकी है। पूरे अक़वाम आलम में आज का दिन पैगाम देना और यौम इस्तेहसाल को एहतजाज के दिन भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। अभी आपको बताएं कि यौम इस्तेहसाल पर भारतीय फौज खौफजदा हो गई है। महफूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अवाम घरों में रहें, लाउड स्पीकर पर ऐलानात किए जाने लगे। बहादुर कश्मीरियों ने श्रीनगर में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। गो इंडिया गो बैक के पोस्टर्स भी लगा दिए। अहम खबर किताब में कहा कि सूबे के हर डिवीजन में एक सड़क श्रीनगर के नाम से मंसूब करेंगे। कश्मीर में होने वाला जुल्म, बर्बरियत और ह्यूमन राइट्स की ग्रास वायलेशन को हम एक्सपोज करेंगे। मैं इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि लाहौर और इसके अलावा पंजाब के हर डिवीजनल हेडक्वार्टर के ऊपर एक रोड हम श्रीनगर के नाम से मंसूब करेंगे। मुख्तलिफ रैलियों में सियासी और समाजी शख्सियात, अदाकार और स्पोर्ट्समैन भी शरीक हुए और भारतीय इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। हमारी अपील है यूनाइटेड नेशन से कि वो अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीरी जो मुसलमान हैं उनकी उमंगों के मुताबिक कश्मीर का फैसला करें। अपने मुल्क के लिए जान देना भी जानते हैं और जो उस पर मैली आंख से देखे उसकी जान लेना भी जानते हैं। 1 साल से लॉकडाउन में है, उनको आज़ाद किया जाए। हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है, कश्मीर आज़ाद होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए और आज़ाद होना चाहिए। सियालकोट, भावलपुर, विहाड़ी, चिश्तियाँ, सादिकाबाद, जहानिया और साहिवाल समेत पंजाब के तमाम अजला में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाती कौम के जज्बे बुलंद हैं। कहते हैं कि इस बार कश्मीरियों को उनका हक दिला कर रहेंगे। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला सिंध की क़यादत में यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सीव्यू पर रैली निकाली गई। वज़ीर आला ने कहा कि कश्मीरियों की पुकार ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। भारत के हिस्से में रुसवाई के सिवा कुछ नहीं।
कराची में भी यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। यौम इस्तेहसाल पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी की क़यादत में सी व्यू पर रैली निकाली गई। रैली से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 365 दिन का दुनिया का तवील तरीन कर्फ्यू भी कश्मीरियों को झुका ना सका। आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। रैली के शुरा ने कश्मीरी अवाम पर भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हुए अक़वाम आलम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। पिशावर समेत KBK में यौम इस्तेहसाल के मौके पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। सूबा भर से एक ही सदा बुलंद हुई कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों के इस्तेहसाल का 1 साल मुकम्मल होने पर खैबर पख्तूनख्वा में इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। शुरा की भारत सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सूबाई दारुल हुकूमत पिशावर, कबायली अजला, खैबर पख्तूनख्वा, कुराम एजेंसी सूबा भर से एक ही सदा बुलंद हुई कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उधर कोयटा में भी यौम इस्तेहसाल मकबूजा कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान असेंबली तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सूबाई वज़रा ने की। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद खालिद से। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के भी चप्पे चप्पे में यौम इस्तेहसाल मकबूजा कश्मीर मनाया जा रहा है। आज 1 साल मुकम्मल हो गया है मोदी सरकार के गैर आइनी तरमीमी मुतलाज़ा बिल, जिसके ख़िलाफ़ न सिर्फ कश्मीरी अवाम बल्कि ख़ुद इंडिया के अंदर भी एहतजाज बुलंद हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ सूबाई वज़ीर सलीम खोसा साहब मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आज साल पूरा होने के जो जुल्म और जबर किया गया है उस यकजहती के लिए बताने के लिए दुनिया को कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ थे, हैं और रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, जैसा कि सूबाई वज़ीर साहब ने भी बताया कि बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में इस एहतजाज को बुलंद करने का मकसद ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की ज़मीर को झंझोड़ा जाए और कश्मीर के हल तलब मसले को हल किया जाए ताकि ख़ित्ते का अमन जो है मज़ीद तय वाला ना हो सके।